اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ واہ 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 واہ۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، واہ واہ واہ۔ ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، کہ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، واہ واہ۔ ہے ذوق کی عظمت کہ دیے مجھ کو سہارے، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو چک سہارے، بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، واہ، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالب کی سہیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب سفیر ہند برائے سعودی عرب عالی جناب حامد علی راؤ صاحب
محترمہ آسیہ حمید علی راؤ صاحبہ، عزت مآب قونصل جنرل ہند جناب فیض احمد قدوائی و محترمہ کوثر قدوائی صاحبہ، محترم شعراء کرام، نہایت محترم اسپانسرز، میڈیا ممبران، خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب صد آداب۔ مشاعرے کے آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں سب سے پہلے طالب علم فہد کو دعوت دیتا ہوں۔ مسٹر فہد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے اس مبارک آغاز کے بعد میں شعراء کرام کو ایک کے بعد دوسرے اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مشاعرہ ایک عظیم الشان مقصد کے تحت منعقد کیا جاتا ہے۔ انڈین پلگرم ویلفیئر فورم یہاں پہ جو تنظیم کام کر رہی ہے، وہ ہندوستانی حاجیوں کی مدد کے لیے اس کا فنڈ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا ادبی تفریح کا ہمارے جدہ میں رہنے والے ہندوستانی حضرات کے لیے ایک بہت بڑا ادبی تفریح کا سبب بھی ہے۔ مشاعرے کی یہاں پہ روایت بہت قدیم ہے۔ سب سے پہلا مشاعرہ 1997 میں ہوا تھا۔ اس کی مقبولیت اور کو دیکھتے ہوئے
यहाँ पर ये मुशायरा हर साल काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा के तहत आज तक मुनक़िद किया जा रहा है और आज वो दिन फिर आ गया जब ये मुशायरा आपके सामने पेश किया जा रहा है। हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ से 12 शुअरा को दावत दी गई है। सबसे पहले जिस नाम को पुकारना चाहता हूँ, आप सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। 20वीं सदी ईस्वी के निसफ आखिर और रवां सदी के पूरे शेरी व अदबी मंजरनामे पर जिन अजीमुल मर्तबत शोरा ने मुशायरों के स्टेज और कुतुब व रसाइल के सफ़हात दोनों हवालों से अपनी नुमायाँ पहचान बनाई और शख्सी ज़िंदगी में अपने कौल व फ़ेल, अखलाक और किरदार, तहज़ीब व सकाफ़त से उर्दू दुनिया को अपना गिरविदा बनाया, उनमें आली जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी का नाम सबसे नुमायाँ है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी पेशे के एतबार से मुअल्लिम हैं। ज़िंदगी का पूरा अमली हिस्सा एक फ़र्ज़ शनास उर्दू मुअल्लिम की हैसियत से गुजारा और मिजाज व तबीयत और शायरी के नहज के एतबार से भी वो एक मुअल्लिम मुरब्बी हैं। इनका ये शेर उनकी ज़िंदगी और उनके रवैये की नुमाइंदगी करता है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीक़ा तो हो तो हर बात सुनी जाती है। जनाब वसीम बरेलवी साहब, संजीदगी और मतानत की दुनिया का जाना पहचाना नाम जनाब आगा सरोश का है। उनके मिजाज की शाइस्तगी उनकी शायरी में भी वाज़ेह तौर पर मिलता है। अब ये पूरी मुशायराती दुनिया के लिए नागुज़ीर बन चुके हैं। इनका ये शेर बहुत महबूब हुआ। दिल से दिल के रिश्ते को हम दिल से निभाना भूल गए, हर आने वाले लम्हे की दहशत ही कुछ ऐसी थी। जनाब आगा सरोश साहब, महाराष्ट्र से आए हुए निहायत मोतबर व मोतमद शायर जनाब जलील शेरवानी साहब, आपको सुखन परवरी पर गैर मामूली कुदरत हासिल है, मुनफरिद अंदाज़ बयान के मालिक हैं। आपका ये शेर बहुत मकबूल हुआ। झूठ लगता था दुनिया का दावा मुझे, आपने जब कहा हो गया मोहतरम। जनाब जलील शेरवानी साहब, अगला नाम डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब का है, जो उर्दू नस्र और शायरी दोनों में अपनी पहचान जिन्होंने बनाई है। हिंदुस्तान और उसके बाहर के मुशायरों, नात व मनाक़िब की महफ़िलों और इल्मी व अदबी सेमिनारों में बड़े वक़ार के साथ मदऊ किए जाते हैं। इनका ये शेर उनकी शेरी अदब व अदबी मिजाज की भरपूर नुमाइंदगी करता है। अगर फूलों की ख्वाहिश है तो सुन लो, किसी की राह में कांटे न रखना। नई नस्ल के काबिल ज़िक्र शायर जिसने सिर्फ शायरी से अपनी पहचान बनाई और मुशायरों के स्टेज से अपनी शायरी के ज़रिए से हमेशा अदब पेश करने की कोशिश की, अहले ज़ौक़ की हमेशा पजीराई आपके हिस्से में आई, उनका नाम है जनाब इकबाल अशहर साहब। इनका ये शेर लोगों में बहुत पसंद किया गया। न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। जनाब इकबाल अशहर साहब, तवाज़ो व खाकसारी का नमूना, इसके साथ ही हिंदुस्तान के मौजूदा शेरी मंजरनामे का बड़ा मोतबर नाम जनाब नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी साहब। इन्होंने मुशायरे की वसातत से अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। मुल्क व बैरून मुल्क के बड़े बड़े मुशायरे इनके बग़ैर नामुकम्मल तस्वुर किए जाते हैं। इनका ये शेर इनकी तबीयत का गम्माज है। ज़रा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है। जनाब नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी साहब। अगला नाम आप सब वाकिफ़ हैं, मुशायरों की दुनिया का जीता जागता नाम। आपके उसलूब की शाइस्तगी, शेरी मिजाज की संजीदगी और बामाना कलाम की वजह से काफ़ी मकबूल हैं। मुशायरों की नज़ामत ने उन्हें मज़ीद शोहरत अता की है। आपका ये शेर आपका पूरा तारुफ है। ज़ईफ़ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ़ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। जनाब नदीम फ़र्रुख साहब, आपकी तालियों के गूंज में। अगला नाम उस शायर का है जिसका शुमार उन शख्सियात में होगा जिनके दोनों लब जुदा होते ही उनकी शख्सियत बोलने लगती है। उनका नाम उनको देखते ही उनका नाम लोगों के जहन में आ जाता है। वो हैं जनाब सिकंदर हयात गाबड़ साहब।
मुशायराती दुनिया के नहायत मकबूल व मारूफ तंज व मिजाह निगार, बात में बात पैदा करना और उर्दू और शेरी महफिल को कहकहाजार बनाना उनका ख़ास वस्फ़ है। इनका ये शेर मुलाजा फरमाएं। मैं तो हर रोज़ पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी, उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा ले यारब, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जनाब गढ़ साहब। दोबारा महाराष्ट्र की मरदुमखेज़ सरजमीन जलगांव में पैदा होने वाले और हैदराबाद दक्कन को अपना मौतन बनाने वाले नहायत मोतबर, नहायत मुहतरम शायर, बुज़ुर्ग शायर जनाब डॉक्टर मोहसिन जलगावी साहब, वहाँ के कसीरुल इशाअत अखबार एतमाद के मुदीर आला के तौर पर दूर दूर तक जाने और पहचाने जाते हैं। तदब्बुर, तफक्कुर, बुर्दबारी आपका खासा है। आपका ये शेर बहुत पसंद किया गया। उड़ान भरना तो फिर आसमान तक जाना, यही जुनून तो सर को उठाए रखता है। जनाब मोहसिन जलगावी साहब। गुज़िश्ता चंद बरस कबल मुशायरों की दुनिया में कदम रखने वाली मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी साहिबा ने बहुत जल्द अपनी एक शनाख्त बना ली और अब मुशायरों में सामईन उनको बड़ी तवज्जो और इन्हमाक से सुनते हैं। यहाँ एक बड़ी तादाद ने उनके नाम की तायीद की, जिसकी वजह गालिबन आपका ये शेर है। ज़माने भर की सारी नेमतें मौजूद हों लेकिन ज़माने भर की सारी नेमतें मौजूद हों लेकिन अगर बेटी न हो तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी साहबा। आखिरी नाम तो बस आखिरी नाम होता है, मोहताज तारुफ नहीं होता। मोहतरमा निकात अमरोही साहिबा हिंदुस्तान के मरदुमखेज़ सरजमीन अमरोहा के एक इल्मी व अदबी खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं। अपनी मेयारी गज़लों और मुनफरिद अंदाज़ पेशकश की वजह से मुशायरों की दुनिया की एक ज़रूरत बन चुकी हैं। इनका ये शेर बहुत मकबूल हुआ। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। नहीं समझा है कुछ भी फ़र्क बेटे और बेटी में, मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाज़ों से पाला है। मोहतरमा निकात अमरोही साहबा। ठीक, एक नाम मुझसे छूट गया, जनाब वसीम मलिक साहब का, जो गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं। आप बहुत रसाइल और जराइद के तवस्सुस से बहुत मारूफ हैं। आपका शेर, आपकी शायरी और उन्हें मशहूर साहिब तर्ज शायर हज़रत अली वासी मरहूम से शर्फ तलम्मुज़ हासिल रहा है। आपका शेरी मिजाज आपके शेर की खूब वजाहत करता है। बैठे बैठे अपने ही घर में मुसाफिर हो गए, हमने हिजरत भी नहीं की और मुहाजिर बन गए। जनाब वसीम मलिक साहब। इस मुशायरे के इनक़ाद में हज़रात, हमारे कई स्पॉन्सर हज़रात ने ताउन किया है। मैं उनका नाम एक सरसरी अंदाज से आपके सामने लेना चाहूँगा, जिनके बग़ैर आज का ये दिन हमें देखना शायद नसीब ना होता। इनमें अब्दुल लतीफ़ जमील मोबाइली, हुंडाई, अब्दुल्ला हाशिम लिप्टन, अलाबीर, जद्दा नेशनल हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहला जुफाली, एयर इंडिया, DPS जड्डा, ब्रिटानिया, अन्ना ईव, लूना, डैनूब, रेमंड, नेटको, इंटर मॉडल सर्विसेज, फियाटा, अलिसाई, डनलप, रेक्टैग, मानस, अल कबीर, इग्न्यू, अन्नौरस स्टोर, योमी, लोटस, ईडन, गल्फा मैन पावर। इन हज़रात का हमारे इस मुशायरे के इनक़ाद में बहुत बड़ा हाथ है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आज के महफिल के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त मआब जनाब हामिद अली राव साहब और कौंसल जनरल हिंद मेहमान शर्फ और मोहतरम फैज़ अहमद किदवाई साहब को स्टेज पे आने की दावत देता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि शम्मा रोशन करें। आप को एस्कॉर्ट करेंगे शेख खलीक साहब।
मैं गुजारिश करूँगा कि इज़्ज़त माब सफ़ीर हिंद हमारे शोरा को शॉल पोशी करें और मोमेंटो पेश करें, जिसके लिए मैं जावेद साहब को और ज़करिया बिलादी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एम्बेसडर साहब के हाथ में पेश करें। वसीम बरेलवी साहब, जनाब आगा सरोज साहब, जनाब जलीश शेरवानी साहब, जनाब ताबिश मेहदी साहब, जनाब इकबाल अशार साहब, जनाब नईम अख्तर बुरहानपुरी साहब, जनाब नसीम मलिक साहब, जनाब नदीम फारूक साहब, जनाब सिकंदर हयात गाबर साहब, जनाब मोहसिन जलगावी साहब, मोहतरमा निकात अम्बोही साहिबा, मोहतरमा रुखसार बलवानपुरी साहिबा, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं काउंसिल जनरल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप शुअराए कराम की खिदमत में नजराने पेश करें। ये नजराने ईडन ग्रुप और अल अस्सासी और जियाडानो की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। जनाब वसीम बरेलवी साहब, जनाब आगा सरोज साहब, जनाब जलीश शेरवानी साहब, जनाब ताबिश मेहदी साहब, जनाब इकबाल अशार साहब, जनाब नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी साहब, जनाब वसीम मलिक साहब, जनाब नदीम फारूक साहब, जनाब सिकंदर हयात गाबर साहब, जनाब मोहसिन जलगावी साहब, मोहतरमा निकात अमरोही साहिबा, मोहतरमा रुखसार बलवानपुरी साहिबा,
शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब सफ़ीर हिंद आली जनाब हामिद अली राव साहब से कि वो गैदरिंग से खिताब करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं समझता कि आज आप मुझे सुनने आए हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सही वक्त पर सही जगह हूँ, और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं शोराओं और आपके बीच में वक्त लूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब मुझे पता चला कि जद्दा में आज मुशायरा हो रहा है, तो मुझे अपने बचपन के कुछ दिन याद आ गए। मैं मेरठ शहर में, बचपन मेरा मेरठ शहर में खैर नगर की गलियों में बीता था, जहाँ बहुत सारे शौरा रहते थे, और नौचंदी के मेले में हर साल जब मुशायरा होता था तो मैं अपने वालिद की उंगली पकड़कर उस मुशायरे में ज़रूर जाया करता था। तो मुझे वो यादें सारी वापस आ गईं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उर्दू जानता हूँ, मैंने उर्दू पढ़ी है या सीखी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं उर्दू के माहौल में मेरा बचपन बीता है, और जो कुछ मैंने उससे सीखा वो आज तक मेरे काम आता है। वाह। उर्दू हिंदुस्तान की एक बेहतरीन ज़बान है, और मैं सारी दुनिया में घूमा, देखा मैंने, और क्योंकि उर्दू एक बेहतरीन ज़बान है, जो शायरी में मज़ा है वो किसी और पोइट्री में नहीं आता। अंग्रेज़ी में, फ्रेंच में, जर्मन में, मैं सब जगह गया, मैंने देखा। या तो ये हो सकता है कि मेरा बचपन वहाँ बीता था तो मुझे वही चीज़ अच्छी लगती है जो बचपन में देखी थी, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि हकीकत में उर्दू ज़बान में एक ऐसी क़ुव्वत है कि जिसका इस्तेमाल करके शौरा वो बात कह पाते हैं जिसके हम लोग मतलब निकाल के कहीं दिल पर हमें छू जाती है। बस इतना ही कहते हुए मैं मंच पर मौजूद हिंदुस्तान से आए सारे मशहूर शोराओं का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, और ये कहते हुए कि आइए आप और हम इस समय का पूरा लुत्फ उठाएं। थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा इज़्ज़त माब कौंसल जनरल हिंद जनाब फैज़ अहमद क़िदवाई साहब से कि वो खिताब करें जलसे से। सफ़ीर हिंद इज़्ज़त माब हामिद अली राव साहब, मोहतरमा आसिया हामिद अली राव साहिबा, शोरा इकराम, ख़वातीन और हज़रात, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। ख़ासकर हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से आए हुए हमारे शोरा इकराम, हमारी इंतज़ामिया कमेटी जो हर साल एक बेहतरीन मुशायरे का आगाज़ करती है, हमारे स्पॉन्सर्स जिनकी मदद से ये मुशायरा होता है हर साल, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत से इस मुशायरे को अंजाम दिया है। ये मुशायरा अब एक तारीख़ी मुशायरा हो चला है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि जद्दा के हमारे हिंदुस्तानी बाशिंदे और भी जो बाशिंदे हैं जद्दा में, वो बड़ा बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं। जैसा इरशाद ने अभी बताया आपको कि IPWF इंडियन पिलग्रिम्स वेलफेयर फोरम, जो कि मिना के हादसे के बाद बनाया गया था,
وہ اس مشاعرے سے جو بھی ہم کو تعاون ملتا ہے وہ پیسہ جو ہے IPWF کے فنڈ میں جاتا ہے اور اس سے ہم حاجیوں کی مدد کرتے ہیں. اس میں جن حاجیوں کا پیسہ کھو جاتا ہے یا جن کا سامان کھو جاتا ہے ان کو ہم جو بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے وہ اس سے کرتے ہیں. پچھلے سال ہم لوگوں نے قریب 2 لاکھ ریال اس فنڈ میں اکٹھا کیے تھے اور اس سے بہت سے حاجیوں کی دعائیں آپ سب کو ہم سب کو ملی ہوں گی ضرور. میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے صرف 2 مدعے آپ کے سامنے رکھوں گا. پچھلے سال میں نے ایک مدعا اٹھایا تھا کہ بہت سے ایسے ہندوستانی ہیں جو جیلوں میں یہاں پر ہیں اور چونکہ ان پر کافی زیادہ پینلٹی اور فائن ہے اور وہ لوگ اس کو جمع نہیں کرنے کی وجہ سے بہت سالوں سے جیل میں ہیں. اور مجھے یہ بہت بہت فخر اور خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ آپ سب کے تعاون سے تقریباً 6.5 لاکھ ریال ایک سال میں اکٹھا ہوئے اور ہم لوگوں نے اب تک 4 ہندوستانیوں کو تو ہم چھڑا چکے ہیں اور انشاءاللہ 8-10 اور لوگوں کو ہم چھڑا پائیں گے. اور اس میں سے 2 تو ایسے تھے جو پچھلے 13 سال سے جیل میں تھے اور اس سال کی عید انہوں نے اپنے گھر پہ منائی آپ سب کی مدد سے. میں یہاں پر الابیر گروپ کے CMD جو النگل صاحب ہیں ان کا بھی خیر مقدم کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ اکثر اس میں بڑی مدد کر رہے ہیں اور بہت ہندوستانیوں کو چھڑانے میں مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح سے اگر ہم لوگ اس جذبے سے کام کرتے رہے تو یہ جو 33 لوگ آج جیلوں میں ہیں یہ بھی بہت جلد سب رہا ہو کے اپنے اپنے گھر جائیں گے. دوسری جو چھوٹی سی بات ہے وہ ایمنسٹی جو ابھی کیونکہ یہ ایک موقع ہے اتنی بڑی گیدرنگ ہمارے سامنے ہے جو ایمنسٹی کچھ مہینوں پہلے یہاں کے خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ نے ڈکلیئر کری تھی. اس سے ہماری ایمبیسی نے ہماری کونسلیٹ نے لاکھوں ہندوستانیوں کی مدد کی ہے. جہاں تک مجھے پتہ ہے ایمبیسی نے تو 60 سے 65 ہزار ہندوستانیوں کی مدد کی. ہم نے تقریباً 20 سے 25 ہزار ہندوستانیوں کی مدد کی اور ہم نے ان کو نہ صرف ایمرجنسی سرٹیفکیٹس دیے بلکہ ترحیل میں ہمارے کونسلیٹ کا سٹاف کافی والنٹیئرز انہوں نے جا کر کے تقریباً 7.5 سے 8 ہزار ہندوستانیوں کی صرف جدہ میں ہی ایگزٹ کرائی ہے اور ان کو ان کے گھر جانے میں مدد کی ہے. میں آپ سب سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ یہ ایمنسٹی ابھی کچھ دن اور ہے 4 نومبر تک کا وقت ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. 4 نومبر تک کے لیے انتظار نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ اس وقت اس کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے ملک اپنے گھر جائیں. اور میں اس ایمنسٹی کے لیے خاص کر خادم الحرمین شریفین کا شکر گزار ہوں. آپ سب کی طرف سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور جو یہاں کی انٹیریئر اور لیبر منسٹریز ہیں جنہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور یہی گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں کی طرح اور جو تاریخی مشاعرے یہاں ہوئے ہیں اسی کی طرح آج کا بھی مشاعرہ ہے انشاءاللہ ایک تاریخی مشاعرہ ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. میں بغیر مزید وقت لیے ہوئے سامعین کی جانب سے جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مشاعرے کی صدارت فرمائیں اور ساتھ ہی جناب ندیم فاروق صاحب سے گزارش ہے کہ نظامت کی کرسی سنبھالیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان سالانہ مشاعرہ، اس مشاعرے کے مہمان خصوصی قابل صد احترام سفیر ہندوستان برائے سعودی عرب، آپ سب کے بہت چہیتے، آپ کے دلوں کی دھڑکن محترم حامد علی راؤ صاحب، کونسل جنرل آف انڈیا محترم فیض احمد قدوئی صاحب، آج کے صدر عالی وقار اور اس مشاعرے کی آبرو ہم سب کے لیے قابل صد احترام محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب،
दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और जद्दा के कोने कोने से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हिंदुस्तान के तमाम जिंदा दिल उर्दू के चाहने वालों को मैं उर्दू के इस जश्न के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए इस मुशायरे के आगाज़ की इजाज़त तलब करता हूँ। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये उर्दू की महफिल है और जैसा मोहतरम किदवई साहब ने कहा अपनी बातचीत में, हामिद अली राव साहब ने भी उस बात का जिक्र किया, ये उर्दू वही जबान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई। हिंदुस्तान में पैदा होने वाली ये हिंदुस्तानी जबान, जिसके लिए कभी दाग ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। यह उर्दू का अपना कारनामा, उर्दू का अपना करिश्मा, उर्दू की अपनी चाशनी और उर्दू की अपनी मोहब्बत थी कि शायर को यह कहना पड़ा कि मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। हजरत गिरामी, जब उर्दू अपना काम कर रही थी, लोगों के दिलों पर दस्तक दे रही थी, चंद नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू को मुसलमान करार दे दिया। कोई इससे जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था वो रद्द-ए-अमल ये आया कि हिंदुस्तान के एक मशहूर हिंदू शायर रामनिवास बेदिल ने कहा कि अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूं, फ़कत एक ज़बान मुसलमान नहीं हूं, कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकां है, मैं मेहमान नहीं हूं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और उर्दू का ये सफर आज की शाम तक पहुंचा। आज की इस महफिल में उर्दू के तमाम शोरा इकराम जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आज की रात यहां जमा किए गए हैं, आपकी खिदमत में यके बाद दीगरे हाजिर होंगे और अपने कलाम के जरिए आज के मसाइल को अपना मौजूए कलाम बनाएंगे, आज के हालात को अपना मौजूए कलाम बनाएंगे।